Formal introduction, just yes, I do run an organization called Mom Movies, which idea pitch, elevator pitch अगर कहें तो कि सारे entrepreneurs बैठे हैं तो using media for social change. But that's not exactly what I do. And I don't know why I get called at entrepreneurship summits or forums, because my dad, who's a businessman, thinks I'm the worst entrepreneur or businessman in my life he has seen, and he really still finds it difficult to understand what I'm really doing. And I have given up like explaining also, अभी 2 दिन पहले ही गए पापा वापस, तो बोले ठीक है करते रहो जो कर रहे हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हो, ठीक है करते रहो अगर खुशी मिलती है. So anyway, so I'm a filmmaker, but filmmaker comes storyteller. So let me start with some stories, and then I'll lead that into about entrepreneurship. I'll try, or social entrepreneurship, or third thing which we call soul entrepreneurship, which is like I like to tell stories about those stories. So I have one thing I don't know if you have seen. So this is Akshay Patra. So since talking about money, so but before I go, let me tell with complete humility. आपके 5 उंगलियां होती हैं तो अलग-अलग point of views हैं, point 10, so like अलग-अलग point of views हैं. So this is my एक side बता रहा हूँ, or like my part of the story. It doesn't necessarily mean that other part is wrong or the other part. So there's no debate in this. Completely friendly sharing and connecting. Basically, that's the whole idea. Oh, I was going to show that. So keep this back. So this is Akshay Patra, made designed by very young children from the either slums, or you can maybe this is painted especially by the slum children, but otherwise we are encouraging another children to make their own Akshay Patra, take the bottle, recycled bottles, paint it and make a small hole and put 1 rupee coin every single day. Idea is, why every single day? It's not a fundraising thing. Idea is, whenever you put a single coin, you think about a nice thought, a compassionate thought for somebody else, and then okay, sabka bhala, hopefully this rupee will go for something else. Again, this is not charity, or it could be charity, I don't know, not playing with words, but basically it's again sharing stories. So idea is when it fills, yes, I don't know charity in my presence or something. It doesn't matter. So see, charity, non-charity, entrepreneurship, social entrepreneurship doesn't matter, as long as we are doing what we love to do, and as long as people are benefiting from that globally, I think that's all we do. So doesn't matter ये सब शब्द तो है, शब्दों का क्या कहते हैं ना, तो सही है. So I'm really passionate about this, because what happened was like we did this like couple of months back, and एक हफ्ता पहले कुछ बच्चों ने, अपने सोसाइटी के बच्चों ने इकट्ठा किया ये अक्षय पात्र के पैसे. मेरे हाथ में 2 थैलियां थी, थैलियों में 5 किलो करीब जितने वजन के सिक्के थे. Young children, 10 years old, less than 10 maybe. एक छोटा सा बच्चा 6 साल का बच्चा था, उसने बोला हाँ हम स्कूल में बहुत करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव करते हैं. And they all collected around more than 5 kilos. I don't even know how much the weight was basically. So they gave that. They said, let's do something nice with it, and we want you to do something nice with it. So much responsibility, so much love, so much क्या करोगे इतने प्यार का जब कोई मिलता है, बच्चों से मिलता है. So we took that, and then we sat together in a circle with another set of children who were from the slums. कुछ बच्चों से हम इंटरव्यू ले रहे थे. Some children really from the poorest of the poor. And it was literally एक बच्चा रोने लग गया था, अपनी कहानी सुना रहा था. Because we are working with some children, creating like a dance and drama show. निमेश करके बहुत अच्छा लड़का है जो he left his whole career back in US and had a big band and stuff like that. So again, that's a beautiful journey altogether, and hope we can meet him someday. But he came down and he's like working with 18 children to create a band show, or where they'll be working on unity के ऊपर show बना रहे हैं. तो उन बच्चों को हमने ये कॉइन्स दिए, बोले एक मुट्ठी कॉइन्स निकालो, लेकिन निकालने से पहले फील द पावर ऑफ वन एंड फील द पावर ऑफ कलेक्टिवनेस. लेकिन आई कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप, सो डोंट थिंक दैट हाँ फिर शेयरिंग थी गुड फील गुड स्टोरीज, फील गुड स्टोरी, एंड आई कम बैक टू दैट. एक एक करके हमने उसको फील किया, सारे सब बच्चों ने सर्कल में बैठ लिया, एंड देन वी टुक ऑल ऑफ अस लाइक एक मुट्ठी और गिन के बेसिकली रफली जस्ट टू अंडरस्टैंड अराउंड 30 रुपीज रफली सब बच्चों ने उसमें पैसे लिए. तो कहा कि नाउ यू गो बैक एंड डू समथिंग नाइस फॉर समबडी एल्स. सबको आप सोचते हैं कि आप नीचे वर्क किए हो तो आपको सब देने वाले को, लेकिन ये और ये नहीं होना चाहिए, ये और ये होना चाहिए. ये तो क्या अभिमान है, मैंने दिया. तो कौन होते हो देने वाला? मेरे पास क्या था जो तुमने दिया? ये है मैंने लिया तो लिया भी तो ह्यूमिलिटी के साथ लिया, तो इसमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए. लिया जिंदगी भर हम लेते हैं, बच्चों बचपन से लेकर बड़े होने नहीं, इधर से पैसे नहीं लेने. थिंक अबाउट एवरीथिंग इज अ गिफ्ट. मैं सिटिंग इन द गिफ्ट में उदय भाई को दिखा रहा था, एक फ्रेंच this guy made this, and they're sitting and enjoying this whole space. So this is like gratitude, right? So thinking, so gratitude with humility. तो ये और ये नहीं होना चाहिए, और ये होना चाहिए. हमने बच्चों को दिया, SSK do something nice with it. It went back. I haven't had the chance to hear all the stories, but
2-3 बच्चों ने जो कहानी सुनाई, एक बच्चा स्पेशली जिससे मैं बात कर रहा था, अपनी कहानी बता रहा था कि बहुत ही लिटरली रोने लग गया था, didn't have much money, no, I mean literally from background से। वो बच्चा बोलता है भैया मेरे पास में, घर के पास में एक बूढ़ी काकी है, कमला काकी, एंड शी इज अ बेगर, और वो रोज ट्रैश उठाती है। दैट मनी 30 रुपए से 20 रुपए का मैंने क्रैक क्रीम लिया उसके लिए, ताकि अपने पाँव में लगे, ताकि उसको कंफर्ट मिले। 10 रुपए का उसने पार्ले जी बिस्किट लिया, ताकि उन चीटियों को खाना खिला सके। एक लड़के ने किसी के लिए काइट लिया, उसी लड़की के लिए, ताकि छोटा सा बच्चा था, बोले कि ठीक बेचारी गुमसुम थी, तो मैं उसके लिए काइट खरीद दी। How can you calculate? That's one story. And this again has so many ripples of other stories. Another one, and I'll come back to that. Uday Bhai, hey Uday Bhai. And this is our like big local hero. Uday Bhai is इनका, if you get a chance, please visit his rickshaw downstairs. रिक्शा चलाते हैं पिछले कई आई थिंक कितने सालों से उदय भाई? आई थिंक मैं 10 साल से चला रहा हूँ। 10 साल से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रिक्शा बहुत खूबसूरत से अंदर से डिजाइन है, लेकिन अतिथि देवो भव की कॉन्सेप्ट से हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, वी फील प्राउड इंडिया, बट व्हाट डू वी रियली डू अबाउट दैट, राइट? सो वी से हाउ कैन आई सर्व बाय जस्ट डूइंग रिक्शा, जो मैं चलाता हूं स्वाभाविक तौर से, मैं हाउ कैन आई सर्व दैट? तो उन्होंने अपने रिक्शा को पूरा कर दिया है गिफ्ट इकोनॉमी में। नाउ दिस इज कमिंग अबाउट कनेक्टिंग दैट विद एंटरप्रेन्योरशिप। Gift economy. Now, what is gift economy? I mean, working really understanding that everything is a gift. Our whole life is a gift. Whole 9 months, I mean, we stay in somebody's, अपनी mom की mother की womb में रहते हैं. That's the biggest gift. How can we decide now we are completely, self-sustainable? Now we have completely power. I mean, so I think acknowledging that gift and how can we pass that talent, our talent, as a gift for others. So here's another biggest example who did all this initiative in his own self. इनका मीटर होता है 0. अब कोई भी आए, कोई भी बैठे, चाहे रिच हो या पुअर हो, बैठाते हैं, वो सिर्फ कि जब वो उतरते हैं बोलते हैं आपका जो इच्छा करे आप दीजिए। पिछले 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, 6 महीने से सक्सेसफुली ही इज डूइंग दैट। आई कीप आस्किंग उदय भाई सब ठीक है ना, कुछ पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, सब हरी हरी, नो वरी नो हरी, हरी हरी, बिल्कुल प्यार के साथ। I mean, I'm not just making him unnecessary hero, just randomly call him one, just to test him, randomly test करना इनको कि ठीक है वो आ जाओ, try to like do that, and he takes around people and he will share some stories after once I complete the entire circle which I'm going to talk about. He does that and अपने रिक्शा में चॉकलेट्स रखते हैं, कुछ बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, कुछ टैग्स रखते हैं कि किसी को स्माइल टैग बनाया, मैगजीन्स हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग देख रहे थे बाहर की, उधर बोलते हैं अपने को भी ऐसा बनाना चाहिए यहाँ पर आर्किटेक्चर का यहाँ पर, ताकि वी कैन टेक आवर गेस्ट टू अदर डिफरेंट प्लेसेस। सो अगेन पैसा नहीं है, पैसे से अलावा जो भाव है उसकी कीमत। सो आई थिंक आई विल रादर हैव हिम talk about that in the second half once I finish this thing के बाद। तो what how does it sustain that? सेवा कैफे, another example जो यहाँ पर CG रोड में I think you must have gone, entrepreneurship के लिए more than last 5 years it has been operating on gift economy। आप जाइए ऐसे गेस्ट अतिथि देवो भव, वहाँ पर आपको empty envelope मिलेगा, not a charity thing, you go an empty envelope, you get that कि आप आए हैं, आप अतिथि हैं, आप अपने घर में आते हैं, तो क्या इसको कोई मूल्यांकन होता है कि आपने 10 रुपए का टमाटर खाया, 20 रुपए का प्याज खाया, अच्छा मुझे आपसे ये चाहिए, बाद में आप जाओगे तो अच्छा हम ये डील साइन करेंगे। How does that happen? They see, they eat food and खाना के बाद उनको एक empty envelope मिलता है कि आपका बिल किसी और ने पे कर दिया है, now it's your chance to pay it forward। पिछले 5 साल से it's been running successfully in the heart of CG Road in the municipal market के opposite में, where nobody can really believe कि वहाँ भी something like that would happen। And not just this, I mean, there's so many experiments like that happening. It's not like a new concept. I mean, it's like शुरू से चला आ रहा है, ऋषियों के जमाने से। वहाँ पर पहले तो होता ही था, पहले हमारे मानते थे कि हमारा पूरा लाइफ गिफ्ट है। अगर सर्व नहीं किया, मैं कच्छ में गया था, तो कच्छ में एक I happened to stay with one artisan family, बहुत ही गरीब, उनके एक गाय थी पूरे 10 घरों में। तो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर आपके घर में एक दिन मेहमान नहीं आया तो वो दिन आपका वेस्ट। opportunity to serve through your talent, serve through your whatever capacity, not just money wise, but if you had the opportunity to serve, that day has been wasted. That was the old age wisdom which we kind of come from basically. So anyway, so that's something. So what I somehow start believing and what we try to do or effort is how can we share stories like Uday Bhai or Seva Cafe or tons of stories. I mean, chance निकल जाएगा। एक काका है जो BS हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को गुलाब फूल बांटते हैं। I'm sure you must have heard about him. And किसी ने उनके जमाने में किसी ने उनको गुलाब फूल दे दिया था। जो करते हैं अपनी मस्ती में करते हैं, अच्छा लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट which comes and I think कि जो entrepreneurship का that evolved to social entrepreneurship responsibility, I think वो भी enough नहीं है। Social entrepreneurship should evolve to soul entrepreneurship. It's a soul entrepreneurship.
His fourth wheel is a sole entrepreneur, and I'll tell you how. उसके तीन मैंने उसके जो मापदंड नहीं है, लेकिन it's some kind of ways of identifying that, and I'd like to share. Again, not right and wrong, no. I'm just sharing another one little finger. There's all the other world and other point of views out there, basically. But what I realized was कि जो पहला है वो स्वधर्म है। स्वधर्म में क्या कहते हैं कि जो आपको naturally आए, feel किया इसने, देखा कि मुझे तो जो भी है everyday hero, he feels that. He doesn't think about business plan, he doesn't think about कि कहाँ profit ratio, सारा proposals and everything. स्वधर्म की देखा, connected हुआ, they saw that, they saw the issues, they identified with it. I said, I have to do something about it. So naturally जो आए वो स्वधर्म. You don't choose that, it comes to you. You become so restless that you have to do something about it. So identifying that स्वधर्म is the first point which I really think for a soul entrepreneurship. Second, कर्म. कर्म कैसे हो? छोटे छोटे काम. मदर टेरेसा से सपोज किसी ने पूछा था एक बार कि बड़ा philanthropist, I don't know if I gave that example last time also, कि big philanthropist came, right? Says, mother, how much is your budget for 1 year? Here's take a blank check. I mean, take whatever you want. You know, like you just name it, I'll give it to you. Mother looks at him very lovingly and says, "You're asking me my budget? How can I give you a budget?" He said, "You are my budget." You know, like जब मैं सुबह उठते साथ ये नहीं सोचती कि आज मुझे 1 करोड़ बच्चों को दूध पिलाना है या फिर काम करना है। जितना है कैपेसिटी, अगर एक बच्चे के लिए दिया भगवान ने, एक बच्चे को कर दी, 1 करोड़ को दिया 1 करोड़ को, 10 को दिया 10 को। तो फीलिंग ऑफ दैट स्वधर्म फर्स्ट आइडेंटिफाई किया कि हाँ मुझे कुछ करना है। सेकंड, स्मॉल काम जितना है उसके सामने, नॉट वेटिंग फॉर डूइंग दैट कि इतना सर आएगा, इतना फंडिंग आएगा, देन आई विल बी एबल टू डू दैट। सो दैट जो कर्म हुआ, जो रियली जो कर्म हम मानते थे पहले, सो फीलिंग इन दैट टर्म, दैट कुड बी स्मॉल थिंग्स और कुड बी बिग थिंग्स इन व्हाटएवर कैपेसिटी। हाथी की भी जगह है और चींटी की भी जगह है, तो नॉट नेसेसरी कि हाथी बड़ा है खराब है और चींटी छोटी है, तो आई मीन नो कंपैरिजन, नथिंग, एवरी सबका अपना अपना कैपेसिटी है, और जो जहां पर है वो वैसा सर्व करे। एंड थर्ड कम्स अकर्म। अकर्म मींस कि ठीक है आपने किया, लेकिन हाउ कैन यू, अगर हम सब सोचे कि मैं अपने पेड़ का फल खुद उगा के खाऊंगा, फिर तो जितने हमने खाए कभी होते ही नहीं। जो बच्चों का मीन जिस कभी पता नहीं चले कि दूसरे बच्चों ने क्या किया, उसके रिजल्ट्स कहां पर आए। अहमदाबाद आई मीन इनके जो बैठते हैं पैसेंजर्स कभी आके नहीं बोलेंगे, उदय भाई मेरे आपने जिंदगी बदल दी और ये हुआ, मैं घर जाके मैं सो स्माइलिंग कि मैंने घर जाके अपने वाइफ के साथ पहली बार हंस के बात की। वाइफ जोक्स ले आता हूं मैं, बैड जोक्स। बट एनीवे, सो आइडिया इज कि यू डोंट नो द रिपल इफेक्ट्स, राइट? जैसे अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर का इम्पैक्ट हमें आज तक नहीं पता है, जो हम छोटे बचपन में रहते हैं। सो वो है कर्म, टू गेट अटैच्ड। सस्टेनेंस की हम बात करते हैं, लेकिन सस्टेनेंस आता है यहाँ पर फेथ के साथ। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं कि स्केलेबल होना चाहिए, राइट? लेकिन इस सोल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है फेथ के साथ कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, अपने स्वधर्म के साथ, तो आएगा, कहीं नहीं आएगा। Kanan will have like 10,000 other Kanans, and maybe they may not have like immediate impact. Tomorrow maybe she says, no, I don't want to do this, I'll go back into whatever I'm doing. But whatever time she did her job. These, I mean, they're like, who knows? I mean, such a big responsibility actually. I'm so glad you're doing what you're doing. So it's very easy to write a check, but to be able to connect them with heart to heart. I says, no, you have to take responsibility because profit बहुत बनाते हैं। I mean, अगर सब कुछ, I personally think it can't be business. And again, that's just one my subjective point of view. It's like my own childish, naive way basically. That's how I can say that. So I really think कि जो soul entrepreneurship है, is believing, doing what you want to do and knowing that you're not alone in this. तो हम जो अद्वैत की जो बात होती थी पहले कि once you start seeing yourself in a context of much larger scale, कि आप सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है या फिर एक इंटरप्राइज की बात नहीं, कितना ऑर्गेनाइजेशन कितने साल का रहता है। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसकी मैक्सिमम लाइफ पीरियड होगी 100 साल। 100 साल अगर बोलते हैं कि अगर 100 साल चल गया मतलब बहुत अच्छा बेंचमार्क है, but that did really good. But think about 2000 years, think about 5000 years. We were talking about like yesterday we had a nice satsang, एक आए थे बुद्धा ने हमें refused to take a again birth, saying I have 165, इसके बाद I think 10 years लगते हैं and to be able to become a Buddha again. But says no, I want to come back and serve. So ideas once you start seeing your context in a much larger picture, then ये lifetime, ये छोटा project, ये छोटा venture seems very small, and then you start seeing, okay, how can my work, how can my venture affect other people? And once you start dreaming of that 2000 years, अनिल गुप्ता बड़ा अच्छा बोलते हैं, I think की बात घुस गई, वो बोलते हैं पूरे पागल हो जाओ। और जब मैं मिला उनसे पहली बात, वो वैसे पूछे, मधु तुम्हारा सपना क्या है? And इसके before I could explain, he says, तुम्हारा next 5 years का सपना क्या है? Next 50 साल का सपना क्या है? सर यहाँ अगले दिन का पता नहीं है आपको, 50 साल। And he was keep saying, अगले 200 साल का सपना क्या है? अगले 2000 साल का सपना क्या है? And then once you devote your dream for the next 2000 years, or even for a moment, just even for
for a moment if you think, what's the dream for next 2000 years? सारा स्वार्थ, मेरा ये किया, वो किया, सारा स्वार्थ मोम की तरफ पिघल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं किया, वो भाव चले जाता है। Then you start saying, okay, आज मैंने दिया, कल कोई और आएगा, वो मेरे लाइट को लेके जाएगा, कल कोई और आएगा, वो मेरे लाइट को लेके जाएगा। And you start saying, you identify with the problem, and start working on that. You start dedicating your whole life or whatever in your own capacity. Nothing is right, nothing is wrong. Not necessarily that if you're not doing it, it also doesn't make you guilty. लोग बोलते हैं कि कल गिब्रान से something very nice he says कि अगर आप अच्छा काम नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे आदमी हो, अगर आप बुरा काम नहीं करें इसका मतलब आप अच्छे आदमी हो। So that's a very, I think, finding our own space. So start seeing that in the entrepreneurship. So I think first finding a meaning why you want to do what you want to do, क्यों है। अगर एक बार वो आ गया तो फिर अन्ना हजारे में जब मिला था उनसे बोले पूरे पागल हो जाओ, आधे पागल से काम नहीं चलेगा, पूरे पागल हो जाओ। फाइंड अ मीनिंग, अपने आप रिसोर्स आएगा। हमने भी कानून की तरह आप लोग की तरह एक टेबल था मेरे पास, मैं और मेरी वाइफ, वी हैड एक पुराना 5 साल का पुराना लैपटॉप था, एक टेबल था, वो भी डोनेट किया था किसी ने। कोई नहीं करना है, बस एक फिक्र थी, एक जुनून था कि अच्छा लगता है, मीडिया है, हमने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है, हाउ कैन वी यूज दैट फॉर ग्लोबल पर्पस बेसिकली, सम काइंड ऑफ सम यूज। बस एक ही विचार था, कोई पता नहीं था 10 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, और अभी भी नहीं पता मुझे, टू बी ऑनेस्ट। I'm not really there. We keep doing so right now. We're just profiling everyday heroes and meeting उदय भाई जैसे लोग, तो बस यही मेरा काम है, meeting and profiling and maybe sharing these stories in different formats and in different mediums. So that's the whole idea, and with that I think I'll stop and if I have any other question. But let have Uday bhai share about his entrepreneurship journey, how he does that, maybe in few words. I think he बहुत अच्छा रहेगा. So give that to Uday bhai. नमस्ते, my name is Uday. थोड़ा इंग्लिश बोल लेता हूँ लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा नाम उदय है और अहमदाबाद तो रिक्शा वाला अपना नाम आप मुझे अहमदाबाद तो रिक्शा वाला, और कोई भी पैसेंजर आता है उसको बिठाने का प्रेम से, और रीडिंग करके जो राट टू पे तुम्हारा दिल बोलने का नहीं, रीडिंग करके फिर वो उतरने के बाद में क्या कहो, जो राट टू पे तुम्हारा दिल करे वो पे करो, तो वो अचंभे में पड़ जाता है। अरे बोले ऐसा तो तुम ही होता है, बोले ऐसा तो होता है, बोले आज तक तो हमने बोले ऐसा सोचा नहीं होगा, आप बोले कवर में ये कैसा, बोले मैं बोला नहीं, बस ये अपना हमारा कॉन्सेप्ट है, बोला ये कॉन्सेप्ट से अपने शुरू किया है। और कई तरह के स्टोरी होती है, कोई ब्लाइंड होता है, अगर कोई जाता है, अभी मैं आता था वो रखियाल से आता था, तो एक ब्लाइंड था बेचारा, इतना ट्रैफिक जाम था ना, और क्रॉस करने का था उसको रोड, तो वो ऐसा सोचता था कि कब जाऊंगा, और मैं देखा, मैं बोला ये आदमी ब्लाइंड है और ये कितना ट्रैफिक जाता है और उसमें ये कैसे क्रॉस करेगा, तो मैं गाड़ी थोड़ा आगे लिया, स्लो किया और गाड़ी को वापस मुड़ाया। मैं बोला आप बैठो, कहाँ जाने का आपको, तो बोले मेरे को क्रॉस करके बस स्टैंड पे जाने का है, तो मैं बोला आप बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा, तो बोले नहीं मैं चले जाऊंगा। उसने ऑटो देखा, उसको ऐसा लगा कि मेरे पास से पैसा लेगा ये, लेकिन मेरी भावना ऐसी नहीं थी। मैं बोला नहीं आप बैठो, मैं आपको छोड़ दूं, आप ट्रैफिक जा रहा है, आप नहीं जा पाओगे। फिर बैठा वो, फिर वहाँ गया, वहाँ पे उसको बोले यहाँ छोड़ दो, मैं बोला नहीं आपको कहाँ जाने का है, तो बोले मेरे को अपने रीतपुर। मैं बोला चलो मैं आपको छोड़ दूं, तो बोले नहीं बोले मैं बस में चले जाऊंगा। फिर उसको मैंने बोला बैठो, मैं आपके पास से 1 रुपया नहीं लूंगा, और आपको मेरी भावना ऐसी है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ में वहाँ छोड़ दूं, ऐसी मेरी भावना है। तो इतना फिर उसके साथ में स्टोरी में बोला आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो, तो एक्चुअली वो यहाँ का भी नहीं था, गुजरात का, बाहर का रहने वाला था। तो उसने नाम बताया, बोले मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, और मैं बोले क्या है, वो कुछ रेडियो के सब कुछ रिपेयर करने वायरिंग का कुछ काम करता था। और फिर बोले मैं अपने हॉस्टल है जर्मनी की, बहुत पुरानी है, बख्तीपुर के पास, राजपुर के पास, बहुत पुरानी है हॉस्टल, वहाँ पे रहता हूँ बोले। तो वहाँ पे मैं बोले ही था, और वहाँ पे जैसे उतरा ना, जैसे अंदर से वार्डन आया, तो वार्डन को भड़क गया, क्या हुआ बोले गाड़ी में आए, उसको ऐसा लगा कि क्या एक्सीडेंट हुआ, ये उसके लिए आया, तो बोले वो तो आया था, अरे क्या हुआ, अरे बोले कुछ नहीं, बोले ये उदय भाई मिल गए थे बोले, और मेरे को बोले नहीं आपको ले जाओ, और मैं आपको बोले मेरे 1 रुपया निःशुल्क आपको ले जाने का है। तो इतना खुश हो गया वार्डन, बोले चलो भाई साहब आप चाय पानी पियो। बोला नहीं मैं आप बाद में आऊंगा, मैं बोला इनको ले जाऊंगा, इतना खुश हो गए। फिर एक दूसरा स्टोरी हुआ अभी का है, मैं मूड बाय लव में गुजराती में स्टोरी शेयर करता हूँ, और इंग्लिश में हमारे मधु भाई जैसे इंग्लिश में शेयर करते हैं। फिर अपने अभी ऐसा सीन हुआ, मैं अपन उत्तरायण के पहले दावे में बच्चे लोग को पतंग चढ़ा ले गया था, एग्जाम पती, तो बोले पप्पा बोले चलो ने उत्तरायण में हमने पतंग चढ़ा लिया, बोले काले उत्तरायण से बोले तमें परीक्षा दी तो हमने बोले पतंग चढ़ा नहीं, हम बोला सारू चलो बिठा लियो। तो वहाँ पे पतंग चढ़ाता था और फोन आया, बोले हेलो उदय भाई, मैं बोला हाँ मैं उदय भाई बोलता हूँ। बोले मेरा नाम स्तुति है, बोले
और मेरे बोले ऐसा हुआ है, बोले मेरे फादर एक्सपायर हो गए और 3 हम लोग बोले लेडीज है, लड़की है और मेरी मदर है, मेरे भाई कुछ नहीं है और 1 साल वो मेरे पिताजी को एक्सपायर हुआ है और बोले उसमें हमको बोले 1 साल हो गया, उसके लिए अपने जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं विधि करने के लिए वहाँ बॉम्बे जाने का मेरी सिस्टर रहती है बड़ी वाली और उनके वहाँ जाके फिर अपने विधि करने का और सुबह कर्णावती बोले सुबह जाती है, बोले तो आप आओगे, बोले मैं बोला हाँ, मैंने बिंदास बोल दिया, मैं बोला हाँ मैं आऊंगा लेकिन आपका एड्रेस दे देना, पहले मैं आपका घर दी जाऊंगी तो रात को मैं 2 बजे आऊंगा तो कोई चोर समझ के धोखे वाली करेगा तो बोले हाँ श्योर। फिर उनका नंबर दिया, मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस दिया, मैं घर पे गया, घर पे देखा उनका सीन देखा तो एक अपने दूसरी भी उनकी 2-3 लड़की थी, उसमें से 2 लड़की तो आंटी के साथ में रहती, तो आंटी क्या है वॉशरूम में गई थी, फिर वॉशरूम में से आई आंटी, 2 छोटे बच्चे थे उनकी लड़की है और लड़की बेचारी डाइवोर्स क्या अपने 9 साल हो गया, उसका पति पेन करता है, मारामारी करता है, ऐसा ऐसी वो खराब आदत है उनकी, तो उसके हिसाब से बेचारी 9 साल से उनकी माँ के पास रहती है और एक लड़की है दूसरी छोटी वाली, उसने शादी नहीं की हिसाब से, तो मैं बोला ओ मैं तो ये स्टोरी जान के सब मेरे को भी दुख हुआ, मैं बोला अच्छा फिर आए दीदी, बोले आपका नाम मुझे भी मिला, नमस्ते आंटी, जय श्री कृष्ण, बोला जय श्री कृष्ण, बैठो पानी वानी चाय का पिलो, बोला नहीं बस आंटी लेकिन आप बैठो, मैं बोला कब जाने का है, तो बोले अपने बेटा टिकट कंफर्म हो जाएगी ना, तो जाएंगे, बोले तुम आओगे ना, तो मैं बोला हाँ श्योर आंटी, मैं बोला बिंदास, मैं बोला मैं आऊंगा, मैं बोला तो इतना खुश हो गए ना, मैं बोला आप चिंता नहीं करने का, बोले हमारे बेटा नहीं है, बोले ऐसे उनके पिताजी थे 1 साल हो गया, बोले वो मर गए, अब उनकी वर्षी के लिए वहाँ जाने का, बोले विधि करने के लिए, आप चिंता मत करना, मैं बोला आंटी मैं ऐसा होगा तो रात को आ जाऊंगा और यहाँ पे रिक्शा में सो जाऊंगा लेकिन आपको मैं लेके जाऊंगा, तो इतने खुश हो गए ना, और मैं बोला आपको, मैं बोला बेटा नहीं है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ और भाई, दूसरे उनकी आंखों में से आंसू आ गए ना, बोला एवरी टाइम ये मेरा नंबर है, कभी भी उनको इतना विश्वास हो गया, बोलो कि वो बाहरगाम जाते तो बोले बेटा तू बोले हम लोग बाहर जाए तो बोलिए घर का ख्याल रखना, बोले आते जाते, बोलो कितना यानी रिलेशन कैसा होता है, भाव अपना भाव सही हो तो भावना जगती है और अहम और अहंकार का त्याग करते हैं ना, जब ये पोजीशन पे बैठते नहीं तो आप लोग पढ़े लिखे, मैं एक एसएससी फेल वाला इंसान आपके सामने खड़ा हूँ, ये बढ़िया बात है। If you have any regarding questions for him, like how does he sustain? I mean, that's the biggest question. He 6 महीने तक basically. Seriously, we have been doing that. खुद का project है, ऐसा नहीं कोई support नहीं है. There was some support by in terms of financing the rickshaw and stuff like that, but right now there's no support for doing the day-to-day activities. So just understand that kind of thing, and so it's one of the experiment I'm saying. It's just not. I'm not saying कि how would it look कि everything ऐसा हो जाए. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ ऐसा हो जाए कि हर कुछ like 5 fingers again. So there's a different ways of looking at things, but this is one way of looking at entrepreneurship or knowing that this is a gift. This is a gift which you have, and how can you, with your work, how can be paid forward in some way or the another. I mean, that's all I think the whole intention is. This is what we call it romancing with life. You get into that mode, you don't feel out like things happen. Sure. So that's awesome. Thank you. हमने रिक्शा देखा और उसमें जो हमने वो डस्टबिन बनाया हाँ। वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ वो आपका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इंग्लिश में समझ पाता था ना मेरी डस्टबिन है, फैन है, रिंग लाइट है, MP3 प्लेयर है, अगर कोई बोले कि गुजराती गीत सांभळो છે હું અમદાવાદનો વિસાવા तो मैं उसको क्या है गुजराती गीत भी सुनाता हूँ, अगर कोई बोले मेरे को लेटेस्ट सॉन्ग सुनना है तो उसको लेटेस्ट सुनाता हूँ, कोई बोले मोहम्मद रफी का गीत सुनना है तो हाँ ये दिया पूरा MP3 चालू कर देता हूँ। But why is it not being replicated? As in, if we see, yes, it is a wonderful concept, and keeping in view heritage or this Ahmedabad का heritage walk or architectural, it's very famous Ahmedabad is. So why is not this project being replicated again? जहाँ पे एक project maybe small scale पे शुरू हो के 6 रिक्शा हो या 12 रिक्शा हो, but then this is what it shows that this is the culture. See, the thing is कि इसका जो base है वो है faith. Lot of things in knowing that जो भाव है, right? So I think इसको logic के साथ we can't do that. And honestly, it's not about fun. I mean, we already have somebody saying the same thing. He said, if you want 100 rickshaws, I'll give you 100 rickshaws. And just like start doing that. In fact, जब ये start किए थे तो ये भी नहीं था. Like somebody like say कि आपको पूरा bus चाहिए, पूरा we'll give you a bus. Doing that. It's not about that. Again, believing in small. अभी हम लोग जो culture आ गया है कि the big is good. ठीक है, I mean, again, no controversy here again, and people they have believe that. But another side, I just like to share that another side, this small is beautiful. ठीक है,
हाँ, ये जो कर रहे हैं ये जो स्वधर्म की बात है, तो इट्स नॉट कि मैंने इनको दिया कि भाई आप ये करो, ये सामने से आया कि मैं दीदी देवो को ब्लाइंड स्कूल वाला जो बताया उनको महसूस हुआ, फील किया, कनेक्ट किया, डू किया। तो रेप्लिकेशन फोर्सफुली नहीं हो सकता है, स्वाभाविक रूप से अगर आए कोई बोले कि ठीक है, तो आइडिया है कि वो करे, तो अपने आप जो गुलाब होता है ना उसकी खुशबू अपने आप नेचुरली फैल जाती है। तो उसमें अगर हम सेंट डालेंगे और 2-4 और गुलाब डाल देंगे, ठीक है, खूबसूरत लगेगा, यू माइट बी एबल टू पोस्ट कि हाँ हमारे पास कल्चर वाइज है, लेकिन आई थिंक सब छोटी छोटी चीजें हैं, then if you inspired, then who knows, I mean tomorrow you'll go back and you'll tell another your rickshaw wala, अरे यार मैंने सुना है उदय भाई, you want to try that? Maybe he'll try, maybe he won't try, or maybe another rickshaw wala, जैसे बहुत से रिक्शा देखते हैं, पता नहीं अभी कोई शायद कोई ऑलरेडी ट्राई कर रहा हो, नहीं कर रहा हो तो अपनी अपनी जगह में कुछ और शायद थोड़ा बेईमानी कर दो, बेईमानी नहीं कर रहा, थोड़ा सा more little kind, how do you know? So idea is not to have a control over that. जो हमारी जो कंट्रोल की जो हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो आता है, let it go. Believing that you do that, है ना, अगर कैपेसिटी में है, अगर मुझे 10 उदय भाई को मिला, absolutely will do that. But you won't find people and they say no no you have to do that because this is good. Then वो forcefully हो जाएगा. Then it will be like a bud, उसको पहले से हम उसके आने से पहले we trying to make it like a flower. So I think it's a beautiful, but I think when it happens naturally, then will have emerge. And इसको forcefully नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि अलग-अलग लोग उसको अलग तरीके से replicate करेंगे. तो आपने सुना तो हो सकता है tomorrow you go back and say somebody else, okay you guys you fourth week, I mean मैं दोनों के IT का work I'll give you volunteer right now. So that's a different replication in your own way, right? You're giving your talent as a gift. He's giving his talent as a gift. So that's a replication. इसमें अगर मैं हम सोचेंगे 10 ऑटो आ जाए या 100 आ जाए तो वो हमारा अहम है कि हमने 100 ऑटो चलाया, तो फिर वो काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से. I mean I could be wrong in that, but that's my own small subjective point of view basically. I think every who knows, I mean कितना replication हो रहा है. And दो आता है थर्ड पॉइंट पे अकर्मक कि काम करो, who knows, I mean कहाँ वो ब्लाइंड बच्चा जो है अभी कुछ दिन पहले इनके पास किसी ने बोला कि उदय भाई अच्छा काम करते हो, मैंने कुछ कलेक्शन किया है क्लोथ्स टाइप का, आप उसको बांटो. तो ये कपड़े लेके दूसरों को बांट रहे थे भिखारियों को और बाहर में जाके. तो बाकी ऑटो वाले देख रहे क्या कर रहा है, ऑटो वाला यार कपड़े बांट रहा है दूसरों को, वो भी अहमदाबाद का. मेरी गाड़ी का कपड़ा फटे ही है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं देता हूँ उनको. आपका फेसबुक लाइक पेज है? नेटवर्क है जहाँ पर तो ऑलरेडी है फोटोग्राफ, बट विल पुट एग्जैक्टली लाइक पेज. And you become an admin for that. Yeah, so Exactly. We have a website, Move by Love, and we have मतलब कि just again ideas to put contain all the good stories. Nobody owns it. I mean, this is completely ownership is Uday Bhai's. Nobody owns that. इनका सारा responsibility, सारा project सब नहीं कर रहे. So ideas to contain or put all these positive stories in one area ताकि एक जगह people can share that. if it could be made a project under you could send it to MBA colleges and places like that wherein people are understand हम आए यहाँ पे entrepreneurship समझते हैं, right? What is the A, B and C of entrepreneurship? Well, basically people who get money and study for the same thing. Wherein if this project would be presented before them, बहुत अच्छा हो जाएगा. Maybe you can do that. Yeah. Exactly. So another point which comes back to our group is that you have called Move by Love. You do what you move by love. I mean, there's no boss over there, there's no infrastructure, there's no staff, there's no salaries, there's no overheads. So whoever, now you're moved by love. Now suddenly you're touched by his story. So maybe you can go back and share his story or your own story with somebody else. And that automatically will have ripple effects. So I think that is more important rather than me or him going. क्योंकि वो अहम आ जाएगा कि मैंने किया. हम नहीं हैं. We are just the instrument through which maybe somehow is manifesting or whatever is small has manifested, I think, in some way. ये सब बातें अच्छी लगती है, किताबों में. मेरी किताबों में रियल लाइफ में भी अच्छी लगती है. Only as long as I don't have liability on my head. मेरे को महीना पूरा होने पैसा मेरे को घर गुजार करने के लिए 10,000 चाहिए. Then I cannot afford the luxury. चलो ठीक है यार मैं पैसा आया जब आएगा तब करेंगे. So that's why I started the example of that little kid. खाने के लिए नहीं है, एक बच्चे को 1,000 रुपए मिला. I don't know ये फैंसी और फेरी स्टोरी नहीं. I'm not getting anything from you by just telling like you know मुझे डोनेशन भी नहीं चाहिए और ना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए I'm asking for any charity. Few days back one kid from the same group, 18 children, got 1,000 rupee note. You can easily say पता नहीं किसका है, मेरे को मिला, मेरे को जरूरत है, मैं रख लेता हूँ. Keep back and give that. It says do that. जो लड़का जिसने दिया है 20 रुपए का क्रैक क्रीम लिया है, how can you measure that? Imagine उसके पास कम लायबिलिटी होगा सर. आज तो हमारे पास फिर भी खाने के लिए है, पहनने के लिए है, कपड़े हैं. Imagine for that guy. And I know this story because एक हफ्ता पहले we were taking certain profiles for that. नहीं उसने 1,000 रुपए वापस किए वो नहीं for the 30 rupees I'm saying. You could have gone back and said okay 30 rupees है, सबसे बड़ा नीड तो मेरी खुद का नीड है. अपने घर में जाके पहले अपना पेट भरूं.
फिर दूसरे को चींटियों को हमें लास्ट थिंग इज लाइक गिविंग चींटियों को खाना खिलाऊं यू कुड इजीली डन दैट नहीं, राइट I think that is the first need that he has to fulfill. फॉर हिज ओन नीड राइट No, चीटियों को जो देने का है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अदरवाइज That is the first need, लेकिन क्वेश्चन इज के मतलब ओके इफ आई थिंक सेम थिंग तो उसमें बच्चे अगर कोई मेरे को ऐसे 30,000 रुपए दे देगा कि बच्चे उसको जाके कर ले देन आई विल चाइल्ड आउट फील हियर मैंने से चैरिटी इधर क्या करने में मैं ऐसा कुछ कहना कि 30,000 रुपए खिला के भेजा काम करता ना इन्होंने कहीं से पैसा लाके दिया मैं इससे बांटने तो अल्टीमेटली आई एम डूइंग गुड ऑफ हिज क्या तो मेरे उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कुछ Sir, I think that's why I said कि there's no right and wrong in this. आपको अपनी कैपेसिटी में जितना हो सके आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है आप विलेजेस में जाके गिविंग वाटर that's a big help or big service you're doing. So point is कि not कि suddenly you become like a hermit and maybe why not if you become hermit if you feel like become a hermit. If you feel like I mean whatever capacity through organizations or through individual through a company I'm not saying like this is this or that this and that. I'm saying this and this, you know, it's not about, you know, this is right or this is right. वो गया ज़माना, it's like about coming together. जो अच्छा काम कर रहा है उसको हाईलाइट करें, उसकी स्टोरी शेयर करें. और जब वो ऑटोमेटिकली जो अच्छा काम हम शेयर करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो जो बुराइयां हैं ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती हैं. हम अगर बुराइयों पे इफेक्ट करेंगे, नहीं आपका बाकी काम अच्छा है 90%, 10 आपका अच्छा नहीं है, आप बुरे आदमी हो. तो उसमें क्या होता है कि जो जितना 90 है वो भी थोड़ा कम हो जाता है. So I personally believe doing that in whatever capacity. Again, छोटा है 1 रुपए तो 1 रुपए के साथ दैट्स व्हाई अक्षय पात्र इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल. नहीं है तो सिर्फ प्यार के साथ मुस्कुराहट के साथ मे बी आज है नहीं है कल होगा वो कैसे समझिए उसको व्हाटएवर स्वभाव है. वैसे आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों से भी जितना जानते हैं दो पीपल लोग आपको बिना पैसे दिए भी चले जाते हैं. आप बनता है सर लोग 2 रुपए देते 5 रुपए देते 10 रुपया लेकिन योर 8 रुपए यानी बिंदास वो 5 रुपया होगा वो 5 रुपया नहीं 500 रुपया बरोबर ऐसा मैं समझता हूँ. बिंदास तो अच्छा है. मैं तो वो जो आपके साथ ऐसे जा रहा है मान लो से आपसे 10 मिनट तक आपको सबके साथ में देगा अगर रिक्शा में जाए तो शायद उसको 50 60 रुपये होगा वो उसने 60 रुपये 50 रुपये दे दे बट कुछ भी नहीं दे या 2 रुपये 5 रुपये दे जाए. सर वही तो ये ऐसे लोग बनते हैं. यानी हमारी अपनी भावना ऐसी है सर कि अगर चलो उसने दे दिया पैसा दे दिया चलो आपकी भावना कैसे करता हूँ मैं तो ये बोल जो लोग ऐसे नहीं बनते यू आर राइट सर मिलते हैं लोग हाँ मिलते हैं ना सर क्यों नहीं चलो वो दे के क्या लेकिन चलो मैंने स्वीकार भी लिया बरोबर अगर वो जाके फिर वो तो वो कितना सोचेगा कि साला मैं यार इतना बड़ा आदमी हो गया वो रिक्शा वाले को मैंने 1 रुपया नहीं दिया यार इसका अहंकार का त्याग होगा ना कोई भावना जगेगी. सर एक बात मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैं नॉर्मली ऑटो में ट्रैवल करता हूँ तो मैं जब मेरे घर से आता हूँ तो 55 रुपीज़ होते हैं मेरे घर से मेरे ऑफिस में. तो एक ऑटो वाला था वो बोले 70 रुपीज़. मैंने बोला तुम मेरे 55 है या 200 है. बोले नहीं 70. मैंने एक काम कर 100 है मैं वो 30 रुपये दे देता हूँ. 15 दिन के बाद मेरे को मैं किसी और जगह मेरे को मेरे देख लिया वो 2 किलोमीटर मेरे पीछे में ऑटो में मेरे पीछे आया बोले सोनी में आया तू यार मेरे को तेरे पैसे दे दो. ऐसा होता है सर. ये तो मेरे अहमदाबाद का ये रिक्शा थी ना मेरे साथ रिक्शा थी खाड़िया में था और खाड़िया से मैं आता था बोले आओ से गांधी आश्रम यानी है ना वो बाहर के इंसान आए हुए थे और दूसरी 2 ऑटो करने की थी तो 2 ऑटो करी मैंने रीडिंग किया खाली और आया मैं बोला तुम्हारा बिल करो पे करो तो गाड़ी देख के इतना खुश हो गया ना बोले रियली बोले ऐसी गाड़ी हमने नहीं देखी बोले फोटो पाड़े बोले कैब वेब पहनी हुई थी तो मेरे साथ फोटो पड़ाया और अंदर फोटो पाड़े फिर कार्ड मैंने दिया उनको बोला लो ये मेरा कार्ड है और वेबसाइट है मेरा मोबाइल नंबर है अब अगर आप अहमदाबाद में रहो तो आप बिंदास एनी टाइम फोन करना मैं कॉल कर आ जाऊंगा. तो दूसरा ऑटो था उसने बोले इतना रुपया हुआ मैं बोला तुम क्या मांगे थे 8 रुपया था तू मांगे थे मेरे को तेरा शर्म आवे मेरे को आना हिसाब है अपना रिक्शा वाला हिसाब खराब पड़े मेरे तो इतना शर्म से झूठ गया ना बोले यार क्या करो देगी अरे मैं बोला ये आइंदा ये अभी किया बाकी आइंदा ऐसा मत करना मैं बोला तो यानी ऐसा है.